Good morning, students. So now we are going to discuss the corrosion of different metals. So hereby very firstly we are starting with the corrosion of copper. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द corrosion of copper कि कॉपर मेटल में corrosion किस तरह से होता है. The copper object lose their shine after some time due to the formation of a green coating of basic copper carbonates, that is CuCO3.CuOH twice. This is the formula of copper carbonate. It is CuCO3.CuOH twice. तो देखिए इसमें क्या होता है कि the copper metal or the articles which are made up of copper, they lose their shine. They lose their shine after some time due to the formation of a green coating of basic copper carbonate. Due to the formation of green coating, एक green कलर की coating उसके ऊपर start हो जाती है due to the formation of basic copper carbonates. किसकी होती है? Copper carbonates, and the formula it is given here CuCO3.CuOH twice. This is the formula of copper carbonate. तो कहते हैं when the copper is exposed to air, कि जब copper को air के साथ expose किया जाता है, या we can say when the copper it gets exposed to air for a long time. This is due to the attack of oxygen, carbon dioxide, water vapors present in the air on the surface of the copper. So whenever oxygen, carbon dioxide as well as the water vapors they react with the copper metal, जब भी वो copper metal के साथ react करते हैं तो we can say there occurs the formation of copper carbonates. उसके ऊपर एक layer deposit हो जाती है. कैसी layer? Greenish colored layer. कैसी layer? Greenish colored layer gets deposited on the surface of the copper. और किस वजह से होती है? Due to the attack of oxygen, carbon dioxide as well as the water vapors. So here the chemical reaction, it is copper plus carbon dioxide as well as oxygen और साथ में क्या होता है? Water. तो copper metal which is reddish brown in color, कैसा होता है? It is reddish brown in the color. जब इस पर एक्ट करते हैं कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन as well as the water, and these all the three things these are present in the moist air. These are present in the moist air. So whenever we left a copper metal into the open air, it leads to be covered. ये कवरिंग, इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है किसकी? It is basic copper carbonate. It leads to the formation of basic copper carbonates. कि copper metal when it reacts with carbon dioxide, oxygen as well as water, so it leads to the formation of basic copper carbonates, or we can say it leads to the formation of copper carbonates which are basic in the nature. So the formula it is given here CuCO3.CuOH twice. Clear to you? After that we are going to discuss with the corrosion of silver. अभी हम जो कोरोजन प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे किसमें? सिल्वर में, यानी चांदी. जनरली आपने घरों में सुना होगा कि मम्मा चांदी के कुछ आभूषण पहनती हैं. सो हियर इट इज़ सिल्वर मेटल ऑल्सो लूजेस इट्स शाइन व्हेन एक्सपोज टू द एयर, कि सिल्वर मेटल भी अपनी शाइन लूज कर देता है व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एयर, जब ये एयर के कॉन्टेक्ट में आता है. तो जनरली यू हैव सीन, घरों में भी आप देखते हो, या सम ऑफ यू यूज टू वियर द सिल्वर बैंगल्स. कुछ बॉयज़ कुछ गर्ल्स दे यूज टू वियर द सिल्वर कराज एज वेल एज द बैंगल्स. सो वट डू यू सी? रिंग्स पहनते हो. वट डू यू सी? कि आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट टर्निशिंग टू ब्लैक इन द कलर. सम ब्लैकिश कलर उनके ऊपर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. सो दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोटिंग और कवरिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड. ये जो ब्लैकिश सब्सटेंस हमारे सिल्वर मेटल पर डिपॉजिट हो जाता है दैट इज सिल्वर सल्फाइड विच इज ब्लैक इन द कलर, और वी कैन से इट इज समथिंग ब्लैकिश इन द कलर. सो द फॉर्मूला फॉर सिल्वर सल्फाइड it is Ag2S. Then after that we can say when silver metal it reacts with the hydrogen sulfide present in the air. When it reacts with the hydrogen sulfide present in the air, so it leads to the formation of silver sulfide which is blackish in the color, as well as here the hydrogen gas is released.
सो इन दिस मेथड व्हाट यू हैव सीन, या आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि सिल्वर मेटल इट ऑल्सो गेट्स कोरोड, वो भी क्या, उसका भी क्या होता है, कोरोजन होता है, और किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर कि किसकी फॉर्मेशन होती है, ब्लैक सिल्वर सल्फाइड. ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिल्वर सल्फाइड का कैसा कलर होता है, इट इज ब्लैकिश इन द color. So after that we are going to discuss with the corrosion of aluminium. एल्यूमिनियम, सल्वर जो जनरली अपने घरों में बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम का क्या होता है, पतीला होता है घरों में जनरली, यू हैव सीन, या वी कैन से फ्रिज में जिनमें आइस हम जमाते हैं, वो भी किससे बने होते हैं, दोज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ द एल्यूमिनियम. सो नाउ सी हियर, in this process a thin layer of aluminium oxides cover the surface of aluminium objects. कि एल्यूमिनियम मेटल जो होता है या जो भी हमारे पास एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी एक थिन लेयर कवर हो जाती है, या वी कैन से वो भी अपने आप को कवर करते हैं विद अ थिन लेयर. और वो किसकी होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की. वो लेयर किसकी होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की. क्लियर टू यू. देन कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ एन एडवांटेज. अब जो एल्यूमिनियम का कोरोजन है उसका हमारे लिए एक एडवांटेज होता है, एक बेनिफिट होता है. क्या, कि जब भी एल्यूमिनियम का कोरोजन होता है तो उससे क्या होता है कि स्टेबल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स इट प्रिवेंट्स द फर्दर कॉन्टैक्ट ऑफ एल्यूमिनियम विद द एयर. इसके ऊपर एक स्टेबल लेयर बन जाती है और फर्दर उसके नीचे का जो मेटल होता है उसका फर्दर कोरोजन होने से वो बच जाता है. सो दिस इज द एडवांटेज. क्या एडवांटेज है कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, या एल्यूमिनियम के कोरोजन का हमारे लिए क्या एडवांटेज है कि जो टॉप लेयर बनती है, टॉप लेयर जो हमारे पास बन जाती है वो अंदरूनी मेटल को, इनसाइड मेटल को क्या होने से, कोरोड होने से बचा लेती है. इज इट क्लियर टू यू. सो हियर द केमिकल रिएक्शन इज गिवन. क्या, aluminium metal when it reacts with oxygen it leads to the formation of aluminium oxide. So again the equation has been balanced. Students, here balancing the equation is very important. Everywhere you should be knowing ki how to balance the chemical equations. Now there are some methods to prevent the rusting of iron. एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, मैंने भी यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट करके बताया है कि कैसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन की रस्टिंग को या आयरन को कोरोजन होने से हम किस तरह से बचा सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ द आयरन. सो हियर द रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग अ कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन विद डैम्प एयर. यानी हम आयरन को डैम्प एयर के कॉन्टेक्ट में आने से बचाएंगे. दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स. कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू डू दैट. उस चीज़ को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं. सो वेरी फर्स्ट इज बाय पेंटिंग ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट्स. की आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, पेंट कर देंगे. द वेरी फर्स्ट एंड वेरी सिंपल मेथड. तो घरों में भी आप जनरली नोटिस करते हो कि आपके घर में कहीं पर भी आयरन रेलिंग्स वगैरह हैं तो क्या होता है कि उन्हें हम बार बार टाइमली पेंट करते रहते हैं. इज इट क्लियर. सो दैट द रस्टिंग डजंट अकर. देन सेकेंड इज बाय ग्रीसिंग और ऑयलिंग द आयरन आर्टिकल्स. आयरन आर्टिकल्स में जो बार बार हम ग्रीसिंग या ऑयलिंग करते रहते हैं तो दे कैन बी प्रिवेंटेड. एंड द थर्ड मेथड इज बाय गैल्वेनाइजेशन. अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, कोटिंग ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक. कि आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक पतली सी लेयर किसकी चढ़ा देते हैं, जिंक की. एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज अ गैल्वेनाइजेशन. क्या मेथड होता है, गैल्वेनाइजेशन. इज इट क्लियर. Now the fourth method is by electroplating. Electroplating iron with the nickel or chromium. Electroplating method is also very much beneficial to prevent the iron from the rusting. Then the fifth method is by making alloys of iron. So what do you understand by alloy here? Alloy क्या होता है, mixture of the two metals, one in the more amount as well as another one in the small amount. So that is the mixture of one metal or one non-metal. It is said to be the, यानी मेटल का मेटल के साथ भी हो सकता है, मेटल का नॉन मेटल के साथ भी हो सकता है. सो दैट इज कॉल्ड टू बी एन एलॉय. तो आयरन के हम एलॉयज बना सकते हैं किसके साथ, बाय मिक्सिंग इट विद द निकल एज वेल एज विद द एल्यूमिनियम. ओके, थैंक यू.